All right, guys. So, hi everyone, and welcome everyone. And I'm glad you all are here today with me, with us. Okay, apologies for the delay. थोड़ा setup करने में जो है हमें समय लग गया. But anyway, तेरा दुरुस्त है जैसे कहते हैं हिंदी में. So let's start. What we are trying to achieve today is that there has been a lot of discussion recently that can information be transferred in such a way that it need not to cost you an arm and a leg. So Earning Labs is trying their best to do all of these webinars and do all of these things where we'll try to share the knowledge that other industry experts might charge you for them or not, but we'll try to spread as much as possible as we can with the experience we have had in our lives of working in the industry. All right. So this is a webinar that is on a very short notice. Okay. And we did not get a lot of time to prepare a lot of things, so take it as a casual conversation between friends. जैसे चार दोस्त चार यार मिलके बैठ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को समझाते सिखाते हैं, कुछ उस तरह से हम इसको लेंगे. ऑल राइट. नाउ आज का जो मेरा विषय है, हम जिन मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं, मैं जिन मुद्दों पे बताने वाला हूँ, उनमें शामिल है कि कैसे डोमेन नेम्स जो होते हैं वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री वाले लोग या ब्लॉगर्स या वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना. ब्लॉगर्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, पीबीएन वाले, ओके, एंड द पीपल हु आर इनटू मनी साइट्स और हु आर इनटू एफिलिएट्स, उन लोगों के काम ये सारे डोमेन्स कैसे आ सकते हैं, हम उन पे बात करेंगे. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ फाइनली. सो लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट थिंग. सबसे पहली चीज जहां से मैं शुरू करता हूँ वो ये है कि डोमेन्स के बारे में देखिए क्या है कि जितने भी हम ब्लॉगर्स हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं, वी ऑल पीपल, whenever we want to build a domain or a project, the default setting is that we try to think of an idea, we go to search on GoDaddy, we search for that domain, and we then see whether that particular domain is available or not. अवेलेबल होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं होता है तो फिर हम बोलते हैं कि यार चलो ये वाला भी चला गया. तो अच्छे डोमेन्स जो रहते हैं ना, वो अच्छे डोमेन्स सारे जा चुके हैं. आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि अगर कोई आइडिया आप लोगों को आया है और वो आइडिया अच्छे डोमेन्स का आइडिया, पता चला कि वो आप जैसे ही करने गए वो डोमेन चला गया, आपने जैसे ही गोडैडी पे सर्च किया आपको पता चला कि तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. ओके, ये सबके साथ हो चुकी हैं चीजें. ऑल राइट. तो अच्छे डोमेन जितने भी आपको आते हैं, हम जिस तरह के डोमेन्स पे काम करते हैं, या द काइंड ऑफ डोमेन्स दैट वी वांट टू हैव are already registered with someone else. So where is the gold mine in this? The gold mine is to snatch the domains from the already registered people, or from the existing owners of those particular domains. So uh, the digital marketers or the PBNs or everyone, importance of an expired domain is certainly something that is underutilized and underrealized. Okay, that is what I'm going to discuss today. When you work on a new domain or on a fresh domain, you have to create links from the scratch, you have to do SEO from the scratch, you have to do all kind of SEO strategies from the scratch. However, having an expired domain is equivalent to having a developed house where you do not have to build each and every part or the walls or everything by yourself. Okay, so you just have to go shift in it and start living. तो इस तरह के एक्सपायर्ड डोमेन्स पे हमें, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि नए डोमेन के बजाय एक्सपायर्ड डोमेन्स लिए जाएं. ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पे जब हम काम करते हैं तो कहाँ से हम ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद ने भी देखी है, मैं स्क्रीन भी शेयर करके आपको बताऊंगा. इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगा. वेदर यू वांट टू गेट अ डोमेन from the perspective of getting a new domain, or whether you want to get the domains for the development. Okay, now moving on. So there are a few sites that you need to know
okay, whenever you want to work with the domain name industry or the domain names, there are some links, there are some things, okay, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी लोग पहले तो नए हैं और जितने भी लोग बिगिनर्स हैं डोमेन्स में, ये लोग अगर चाहते हैं कि हम सर कहाँ से सीख सकें या हम कहाँ से डोमेनिंग के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो कहाँ से सीख सकें, तो उन सब लोगों को मेरी पहली सलाह ये है दैट यू गाइस शुड स्टार्ट विजिटिंग namepros.com। ठीक है, जो आप में से एक्सपर्ट हैं उनको ये सलाह शायद बहुत ऑड लगेगी, पर जो नए हैं वो लोग नोट कर लें। मेरे पास रोज के कम से कम 10-12 मैसेजेस आते हैं कि सर वेयर कैन वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट डोमेन नेम्स, वेयर कैन वी लर्न स्टार्ट टू नो मोर अबाउट डोमेन नेम्स। सो द आंसर इज namepros.com। स्पेशली नेमप्रोज में भी कौन सा सेक्शन जो काम का है और उसमें आपके काम की कौन सी चीज है, हम उन पे बात करते हैं। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आप में से जिन लोगों को देखना हो तो देखिएगा। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है मेरी। ओके, हाँ, अब देखिए namepros.com में आप लोगों के काम का जो सेक्शन कहाँ से है, ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। दोज हु आर नॉट बिगिनर्स दे कैन इग्नोर दिस पार्ट। ओके, we'll get done with it in 10 minutes. So all you have to do is to go to domain beginners. Even this is some section which even I myself visit sometimes. Okay, whenever I have to refer people that where to start from, this is the thing that I use. इसमें जाके हम बिगिनर सेक्शन में पॉपुलर बिगिनर रिसोर्सेज, और इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके काम के टॉपिक्स हैं। डोमेन इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, इन्फोग्राफिक एक बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डोमेन बिगिनर्स के लिए कौन से चीजें काम आ सकती हैं, टिप्स हैं, ट्रेडमार्क डोमेन्स पे इन लोगों ने बात की है, बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। ओके, उस पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे डिस्कशंस हैं, ये सारे डिस्कशंस आपको मुझसे समझने के लिए कम से कम ऐसे 20 वेबिनार्स करने पड़ेंगे, जो कि आप खुद पढ़ के यहाँ पे खुद से 1 घंटे में या 2 घंटे में आप काफी कुछ आइडिया ले सकते हैं। ओके, जैसे मैं ये थ्रेड खोलता हूँ कि 6 लेसन्स फ्रॉम डोमेन बिगिनर फ्रॉम अ बिगिनर। ओके, तो इसने बताया है कि क्या चीजें आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, इतना सारा मैं अगर एक वेबिनार में कवर करूँ ना तो मुझे अकेले को 3 घंटे लग जाएंगे, मगर इसने बढ़िया तरीके से समझा दिया, और ऐसी सैकड़ों चीजें यहाँ पर हैं। तो एक तो इसको आप बुकमार्क कर लीजिए, द यूआरएल इज namepros का बिगिनर सेक्शन। ओके, namepros डिस्कशन एंड डोमेन बिगिनर्स। इसमें एक बहुत बढ़िया इन्फोग्राफिक है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ओके, सो मेनी पीपल आस्क कि हमारा डोमेन अच्छा है या नहीं, और मेरे पास कई लोग रोज के ऐसे भी डोमेन्स लेकर आ जाते हैं जो देख के मुझे अपने आप को शर्म आती है कि यार ये कैसा डोमेन है, मगर फिर भी मुझे उसे बताना होता है। तो ये जो इन्फोग्राफिक है ये आपको समझाएगी, ये आपको बताएगी कि अच्छे और बुरे डोमेन में क्या फर्क होता है, कहाँ से क्या चीजें होती हैं। ओके, as you can see that what's the difference between a good domain, cupcakes.com versus online-cupcake-store.biz। कई लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, मगर ये उन लोगों को कौन समझाए कि ऐसा नहीं होता। ओके, बताया है कि जो बेस्ट डोमेन है, लेट्स से एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो joystick.com को हम एक बेस्ट डोमेन मान सकते हैं, arcade joysticks को उससे सेकंड, और raise discount joystick.biz is the worst selection that you can make. We have a lot of examples about the same. Okay, what kind of domains do we have, what kind of things that make a good domain। तो ये जो इन्फोग्राफिक है ये आप शेयर कर लेना, मैं चैट में इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर किए दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जाके इस ग्राफिक को अगर आप खुद समझेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद को मिल जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं। ऑलराइट, व्हाट मेक्स अ गुड डोमेन अ गुड डोमेन। चलो, फेयर इनफ। मूविंग ऑन, नेमप्रोस पे आपको ये पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली कर सकते हैं। अगला सेक्शन जो नेमप्रोस पे मैं समझाने जा रहा हूँ वो रहेगा कि डोमेन में एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में अगर आपको बात करनी तो एक्सपायर्ड डोमेन और ड्रॉप कैचिंग का एक सेक्शन है, यहाँ पर है। उसके बाद अगर आपको
पार्किंग और एड्स रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे आपको उसमें सारे थ्रेड्स मिल जाएंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर कस्टम क्वेश्चन है तो आप उसको यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि क्या आपको चीजें उसमें देखना है, आपकी क्या क्वेरीज है। मेरे जैसे और मुझसे भी बेहतर बेहतर एक्सपर्ट्स इस फोरम पे आपको मिलेंगे। ये अगर किसी ने छान लिया तो उसको डोमेनिंग में गारंटी से लिख कर देता हूँ कि उसको डोमेनिंग में फिगर तो खैर मैं नहीं बोलूंगा कि महीने के कितने कमा सकता है, पर हाँ उसको डोमेनिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये है। उसके बाद इसमें मार्केट प्लेस है जहां पे डोमेन्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो अगर आपको खरीदना बेचना हो तो आप इसके मार्केट प्लेस का भी कर सकते हैं यूज। इस तरह से बहुत सारी चीजें नेम फ्लोस पे आपके करने के लिए होती है। ओके, अब हम आते हैं कि ये तो हो गया चलो अब डोमेन बेचने का। अच्छा, आप में से किसी ने भी अगर मैंने अर्निंग लैब्स में सबसे पहले एक पोस्ट करी थी जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हम कैसे डोमेन्स को बेचते हैं, किन किन मार्केट प्लेसेस पे। उनमें शामिल है Dan.com, सीडो, फ्लिपा, और क्या स्टेप्स होनी चाहिए कि कब आफ्टर निक पे लगाना है, कब उसको कितने प्राइस पे लगाना है, कितने प्राइस पे नहीं लगानी है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप में से अगर किसी ने वो पोस्ट अभी तक, ऐसा कोई तो नहीं है जिसने वो पोस्ट नहीं रीड की हो। अगर नहीं की है तो अभी जाके आप अर्निंग लैब्स ग्रुप पे ये वेबिनार खत्म होते ही उस पोस्ट को रीड कीजिएगा, तो आपको बेचने के बारे में एक वो मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल। ओके, नाउ I'm going to walk you through the process of acquiring the domain names. Okay, especially my expertise, which is acquiring the expired domain names. Okay, that's what I'm going to talk on next. तो आप में से जो भी लोग अभी तक ऐसे ढीले बैठे हो वो आप तन के बैठ सकते हैं, and please pay complete attention to it because this is something that is not easily available. अभी तक जो मैंने जानकारी दी वो तो आप लोगों को दूसरी जगह से मिल जाएगी, पर अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शायद जिन्होंने पहले मेरे वेबिनार्स अटेंड नहीं किए हैं उन लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं नई होगी। ओके, तो हम अब इस पे बात करने जा रहे हैं। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट वेबसाइट दैट आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू इज theexpireddomains.net। ये किसी भी डोमेनर के लिए या किसी भी पीबीएन वाले बंदे के लिए या जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं उनके लिए ये वेबसाइट किसी भगवान से कम नहीं है। ओके, ये वेबसाइट पे आपको, और सबसे बड़ी बात है, अर्निंग लैब्स जिस चीज का फैन है वो है ये वेबसाइट आपसे कोई चार्ज नहीं करती। इतना सारा डेटा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, फ्री तो छोड़ो पैसे में भी नहीं मिलेगा, वो डेटा ये वेबसाइट आपको देती है। ओके, that kind of data is available on expireddomains.net. If you utilize it, it can literally be a gold mine. Okay, तो इसमें भी कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि नए बंदे के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है expireddomains.net। ओके, तो इसमें कैसे हम नेविगेट करें, क्या करें। तो सबसे पहले तो आप expireddomains.net खोलिएगा और उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि इसमें कई जो डेटा होता है वो नॉन लॉग्ड इन मेंबर्स को नहीं दिखता है। तो आपको अगर देखना हो तो इसमें लॉगिन करने पे आपको ये दिखेगा। ओके, अब इसमें जाने के बाद हम इसमें दो तरह से काम करते हैं। So in expireddomains.net we do it like from two angles. The first one is marketplace. Okay, marketplace is something जहाँ पे GoDaddy और जो दूसरे मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे अच्छे अच्छे डोमेन्स आए हैं या आ रहे हैं, उन डोमेन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम GoDaddy एक्सपायर्ड की बात करें, इस पे जाएंगे और ये बहुत सारे जितने भी कॉलम्स हैं ये पूरे आपके डेटा मैट्रिक्स हैं। ये कॉलम्स आपको समझाते हैं कि आपको कौन सी चीज पे ध्यान देना है, कौन सी चीज पे आपको नहीं देना है। ओके, कॉलम्स के हिसाब से हम इस डेटा को हम सोर्ट भी कर सकते हैं। बोल रहा है क्या? मार्केट प्लेस मीन्स ऑप्शन, मार्केट प्लेस मीन्स जो डोमेन रजिस्ट्रार्स ने ले रखे हैं आयुष, या जो डोमेन्स कहीं ना कहीं पहले से रजिस्टर्ड हैं, लोग बेच रहे हैं या रजिस्ट्रार बेच रहे हैं, उनको मार्केट प्लेस कहते हैं।
अब ब्लॉगर्स के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए इसमें से कौन से मैट्रिक्स काम किए हम उस पे आते हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहला जो मैट्रिक है वो है एसजी यानी, अच्छा कोई भी मैट्रिक के बारे में आपको जानना हो तो उस पर ले जाके आप माउस टिका देंगे एंड इट विल टेल यू what that metric actually is. Let's say for example this is SG means global monthly searches. गूगल में कितनी सर्चेज उसकी होती हैं, हम एसजी से सॉर्ट करेंगे तो हमारे सामने जितने भी डोमेन्स आ जाएंगे ये वो डोमेन्स हैं जो हाई सर्चेबल डोमेन्स होते हैं। ओके, हम सीपीसी से सॉर्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट मार्केटर्स हो सीपीसी के बारे में तो मुझसे अच्छा जानते हो, ठीक है। तो देखिए इतनी इतनी सीपीसी इसकी है, सर्च वॉल्यूम इतना है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। एसीआर, एसीआर वो मैट्रिक है, अगर हम टिकाएंगे इस पे माउस तो हमें पता चलेगा archive.org, web.archive.org, इससे पता चलता है कि ये साइट पहले, ये जो डोमेन है ड्रॉप होने के पहले इस पे क्या डेवलपमेंट था और क्या नहीं था। तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे ना इसमें फर्जी डोमेन्स दिख रहे हैं, ये जितने भी हैं न्यूमेरिकल डोमेन जितने भी दिख रहे हैं ये सारे स्पैम हो चुके हैं। तो कॉम एक्सटेंशन के अंदर ये दिक्कत थोड़ी रहती है कि उसमें अधिकतर आपको स्पैम डोमेन्स मिलते हैं, उससे हम कैसे निपटे या कैसे बचें उस पर भी हम बात करेंगे अभी। अब इसमें मार्केट प्लेस के बाद उससे भी बेटर फिर मैं आता हूं पेंडिंग डिलीट डोमेन्स पे। ओके, पेंडिंग डिलीट डोमेन्स वो होते हैं जो मार्केट प्लेसेस से भी निकल गए और अब वो ड्रॉप होने वाले हैं। ओके, ये इसमें एक सेकंड, हम इसको सीपीसी से नहीं सॉर्ट करते हैं, एसीआर से भी, एक एलेक्सा रैंक से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके ओके, अब आप में से जितने भी लोग थोड़े समय से भी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हो, उनमें से किसी को मुझे एलेक्सा की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, एलेक्सा का डेटा गलत भी हो सकता है, मैनिपुलेट भी होता है, ये भी मैं जानता हूँ, रैंकिंग उसकी कम ज्यादा भी की जा सकती है, मगर फिर भी एक वेबसाइट पे एक्चुअल ट्रैफिक कितना आ रहा है ये पता करने का अभी भी श्योर शॉर्ट तरीका उनमें से एलेक्सा को एक माना जाता है। तो एलेक्सा रैंक जितनी कम हो मतलब उसको उतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, ऐसा कहीं ना कहीं जो है माना जाता है। तो आप इसमें देखेंगे इस तरह के जो डोमेन्स है, डोमेन्स के कीवर्ड्स तो अच्छे नहीं रहेंगे मगर ये वो डोमेन्स है जिन पे एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है। सो ये जो डोमेन्स होते हैं एलेक्सा वाले डोमेन्स वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि इन पे ट्रैफिक है। अब इसमें क्या होता है, हमें एक से ज्यादा मैट्रिक्स कंबाइन करने होते हैं। एक से ज्यादा मैट्रिक्स हम कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे एलेक्सा रैंक तो बता रहा है मगर जैसा मैंने कहा कि कई बार एलेक्सा रैंक भी फेक हो सकती है। तो अब एलेक्सा रैंक में भी हम ऐसे डोमेन कैसे निकालेंगे कि जो अच्छे हों, तो हम उसको कंबाइन करेंगे कि एलेक्सा के साथ में और कौन से मैट्रिक्स हैं, what other metrics are there in conjunction with the Alexa rank that can be used to determine whether the domain can actually bring you the required traffic or not. Okay, तो इसमें जो बाकी जो है जैसे मैजेस्टिक मिलियन, क्लास सी पॉप, इसका मतलब अगर आप में से किसी को पता हो तो अच्छा, तो नहीं तो मैं समझाता हूँ कि कितने बैकलिंक्स इसको हैं डिफरेंट सी क्लास आईपी से, मतलब पीबीएन या ऐसी चीज में यूज नहीं किया। ओके, ये भी बताता है कि मॉस के हिसाब से कितने लिंक्स है। एसईओ किक्स करके एक कंपनी आती है जो लिंक काउंट करती है। देखो अलग अलग कंपनियों के ना लिंक गिनने के अलग अलग तरीके हैं, एएचआरएफ एक होता है उसका अलग तरीका है, मॉस का अलग तरीका होता है, मैजेस्टिक का अलग तरीका होता है, आपके सेमरश का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज इनके अलग अलग तरीके होते हैं, मगर इनमें इन सबको एक कॉमन देखते हुए अगर मैं देखूं कि यार इसकी ये वैल्यू 0 है, मैजेस्टिक के हिसाब से इसको कोई लिंक नहीं मिले, तो ये वाला जो डोमेन है ये अलग से दिखता है। जब मैं ऊपर से एक स्कैन करता हूं तो ये डोमेन्स के देखिए कि इस डोमेन के सारे लिंक बैकलिंक काउंटिंग के हिसाब से इस डोमेन पे बहुत ऑथोरिटी लिंक्स दिख रहे हैं। हालांकि ट्रेडमार्क वायलेशन का डोमेन नेम है, हो सकता है, बिल्कुल tatadocomo.com है, मगर इसकी अगर ये टाटा डोकोमो के अलावा कोई और डोमेन होता तो इसकी आप देख सकते हैं कि बैकलिंक्स वैल्यू कितनी है। इसी तरह से नेक्स्ट डोमेन, इसमें इस पूरी लिस्ट में मैं कौन सा डोमेन अच्छा मानूंगा, अब आप देखेंगे इसमें कि एक ये डोमेन अच्छा है। ओके, इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक पे देखें तो एक ये डोमेन थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब ये सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या है ये, पर इसके पीछे का एक साइंस है कि जिस डोमेन को जितनी ज्यादा अलग अलग बैकलिंक्स कंपनी ने बोल रखा है कि हाँ इस डोमेन पे लिंक आ सकता है, वो डोमेन पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार इस पे जरूर ट्रैफिक या इस पे जरूर चीजें अच्छी आएंगी। तो ये एक जो मेरा तरीका है, देखिए
मेरे पास वेबिनार करने के लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास 10 घंटे नहीं है, तो मुझे आपको शॉर्ट में समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक कॉलम भी समझा सकता हूँ कि एमएमसीपी क्या होता है, एमएमजीआर क्या होता है, ठीक है, बैकलिंक्स पॉप क्या होता है, एसईओ किक्स बीपी क्या होता है, ये सब समझा सकता हूँ मैं। मगर जो चीज मेरे समय का इस्तेमाल बेस्ट यूटिलाइज कर सके, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि ये सब आप टूल टिप देके आप देख सकते हो कि क्या चीज है। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, समय बचाने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे जाके और इस तरह से अच्छे डोमेन्स आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गई ब्लॉगर्स, ट्रैफिक और इन लोगों की बात। ओके, अब हम इसमें और भी ज्यादा फिल्टर्स अब हम इसमें ये लगा सकते हैं कि हमें ऐसा डोमेन चाहिए जो हमें दूसरे एक्सटेंशन में कितना रजिस्टर है। तो एक ये रेज वाला कॉलम होता है जिससे पता चलता है कि डोमेन कितने एक्सटेंशंस में रजिस्टर्ड है। कितने एक्सटेंशन में मतलब कॉम, नेट, ओआरजी, ये सब एक्सटेंशन होते हैं। तो ये डोमेन अब अगर हम देखेंगे तो blockchain.jobs ये ऑब्वियसली कॉमनेट से लेके जितने भी एक्सटेंशन आप सोच सकते हो उनमें रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ स्विच करके डोमेन फ्लिपिंग पे। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉगर्स के लिए, इंटरनेट मार्केटर्स के लिए, ट्रैफिक वाले और इस तरह के अच्छे डोमेन्स। अब मैं आ गया हूँ कि डोमेन फ्लिपिंग के लिए, बैकलिंक्स के सॉरी रीसेलिंग पर्पस के लिए किस तरह से अच्छे डोमेन देखे जा सकते हैं, मैं इस तरह से स्विच करता हूँ। ओके, तो ब्लॉकचेन एक्सटेंशन में सारे डोमेन्स लिए जा चुके हैं। blockchain.jobs अवेलेबल है, crypto.mx अवेलेबल है, data.kr अवेलेबल है। तो ये वो डोमेन्स हैं जो अलग अलग एक्सटेंशन में रजिस्टर हो चुके हैं सबसे ज्यादा, और इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में अभी अवेलेबल है। इसमें भी अगर आपको फिल्टर करना हो तो आप इसमें फिल्टर पे जाके, एडिशनल पे जाके आप बता सकते हैं कि मुझे कौन से डोमेन चाहिए। जैसे हम कॉम करते हैं कि भैया हमें सिर्फ .com डोमेन चाहिए और अप्लाई फिल्टर कर देते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ .com डोमेन्स बताएगा जो दूसरे एक्सटेंशन में भी रजिस्टर हो चुके हैं, जैसे टेरावीवा, सिंपली बेटर, मेट्रोटेक। ये मैंने आपको ना निकाल के निचोड़ सार बता दिया। आप मन से 100 तरह के डोमेन सोचोगे, यार अभी ये ट्रेंड चल रहा है, अभी ये इंडस्ट्री चल रही है, अभी इसमें फायदा ये होगा, अभी इसमें होगा, मैं सोचू नहीं सोचू, यहाँ पे करके आपको वो सारे डोमेन दिख जाए। क्योंकि सोचो, जो डोमेन .net में, org में, इन्फो में, .this, .that, .listen, whatever, जिसमें भी रजिस्टर्ड है, उसका अगर कॉम वर्जन ड्रॉप हो रहा है तो कितने काम का हो सकता है। तो अब इसमें भी एक कंजक्शन पॉइंट ऐसा आता है जो डोमेन ब्लॉगर्स के लिए, एक्सपायर्ड वालों के लिए, ट्रैफिक के लिए, रिसर्चर के लिए, सबके काम का हो सकता है, जैसे कि freshnet.com। अब ये जो डोमेन है ना freshnet.com, ये सारे वो डोमेन्स मैं बता रहा हूँ जो डिलीट होने वाले हैं। यहाँ पे इनकी डिलीशन तारीख लिखी है 5:25 सॉरी मतलब 25 तारीख को, मई मंथ के। तो ये डोमेन आपका कल डिलीट हो रहा है। डोमेन डिलीशन के टाइमिंग्स मैं शायद किसी पहली पोस्ट में बता चुका हूं, नहीं तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। .com डोमेन्स ड्रॉप होते हैं रात के 11:30 बजे से तो 12:30 बजे तक। ओके, इस 1 घंटे के पीरियड में ड्रॉप होते हैं। यहाँ पे लोग रजिस्टर कर सकते हैं, फिर कोई ड्रॉप कैच भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। freshnet.com ऐसा डोमेन है जो दूसरे एक्सटेंशंस में भी रजिस्टर्ड है, जिसकी बैकलिंक्स प्रोफाइल भी तगड़ी है। ओके, एलेक्सा रैंक तो खैर चलो नहीं है, मगर बैकलिंक प्रोफाइल इसकी तगड़ी है, तो बेचने भी के भी काम आएगा। और आप शर्तियां लिख के लो इस डोमेन को रजिस्टर करने के डे 1 पहले दिन से इस पे एग्जिस्टिंग ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डेवलप्ड साइट रही है। अब किस चीज की डेवलप साइट रही है वो भी अगर आपको देखना हो तो वो भी पॉसिबल है। एसीआर पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। इस पे हम जाते हैं तो हमें बताता है कि पहले इस पे क्या था। तो लेट्स होप कि कुछ साफ सुथरी चीज ही आए, है ना, क्योंकि ये वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट होता है, कुछ भी इसमें आ सकता है। पहले क्या था ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो अगर कुछ ऐसा वैसा आ गया तो वीडियो में हम उसको काट देंगे। अच्छा, चलो, इस पे नहीं है, थोड़ा पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं हम, अगर कुछ हुआ तो। इस पे भी नहीं है, और पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे हम। ओके, लेट्स से 2016 में बहुत एक्टिव थी ये साइट, हम 2016 में देखते हैं इस पे क्या चल रहा था। वेबैक मशीन तो सबको पता है ना कि पहले ये साइट क्या थी। वेबैक मशीन वो टूल है जो साइट कैसी थी उसको लेके रख लेता है। वाओ, सो इट यूज्ड टू बी probably some kind of blog on
मे बी फैशन एंड इवेंट्स, कुछ फीमेल फैशन और इवेंट्स जैसा कुछ मुझे ब्लॉग ये दिख रहा है। ठीक है, अब आप सोचो ये जो ब्लॉग था जिस भी बंदी ने बनाया होगा, ठीक है, ये फैशन ब्यूटी वेलनेस डिजाइन इंटीरियर और कितना सुंदर सा ब्लॉग बनाया यार, बहुत अच्छी चीज बनाई थी और बैकलिंक प्रोफाइल देख के लगता है कि चलता भी बहुत अच्छा था। अब आप इसको ले लो इस ब्लॉग को और इस पे या तो ये कंटेंट डाल दो अपना नया डाल दो, तो सोचो पहले दिन से ही गूगल की नजर में आपकी अथॉरिटी कितनी हो गई। वो अथॉरिटी आपको अपनी तरफ से फ्रेश डोमेन पे बनाने में आपको साल भर का समय लगेगा। आप पीपीसी करोगे, आप एड्स लगाओगे, आप बैकलिंक बनाओगे, आप व्हाइट हैट करोगे, आप ब्लैक हैट करोगे, आप ऑन पेज करोगे, आप ऑफ पेज करोगे, आप पीबीएन करोगे, आप वेबलिंक्स 2.0 करोगे, आप ब्लॉग पोस्टिंग करोगे, आप गेस्ट पोस्टिंग करवाओगे, आप ये सारी चीजें करोगे, उसके बाद यहाँ तक पहुंचोगे। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी इम्पोर्टेंस समझ के जो लोग काम करते हैं वो लोग शुरू से ही फायदे में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आए। व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंशंस पे अब हम बात करते हैं। ओके, Santosh Kumar, can we flip this? So I have already written an article uh, very well in Earning Labs, and somebody above has posted the link for that. Okay, will you buy Fresh.net? Yes, I will buy definitely. अगर मैं .com में एक्टिव होता तो, पर चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूं। और आप में से जिनको भी बेचने के बारे में समझना हो, अर्निंग लैब्स के लिंक पे चले जाएं, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने जो पोस्ट लिखी है कि कैसे डोमेन्स को फ्लिप किया जाता है, कैसे बेचा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ड्रॉप होने जाते हैं तो बहुत सारी कंपटीशन होती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट if any domain which is even moderately or averagely good, that particular domain attracts the attention of lot of domainers, bloggers, digital marketers, PBN builders, and the people who want to utilize the traffic on that particular domain name. So there are multiple people who try to attempt to register and catch that domain name. Some of them also place the back order for that particular domain name. What is back ordering? That there are certain back ordering companies who try to catch that particular domain from you or for you the moment it drops. Okay, and if they are successful in catching the domain for you, you have to buy from them. एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि आप खुद से भी रजिस्टर कर सकें। दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं। ओके, अब मैं जिन चीजों में काम कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ कि आई एम पर्टिकुलरली वर्किंग विथ .intld बिकॉज .intld के साथ में खासियत ये है, मैं अपने पहले के वेबिनार्स में ही बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन में नहीं जाता। Whenever a .in domain name, have you ever seen a .in domain name in GoDaddy auctions? No, you would never. If you don't believe me, just open a new window on your browser, head to godaddy.com, go to their expired domain section and see, you will see all kind of domain names, all kind of extensions, from new GTLDs, from new TLDs to everything. However, you will not find .in there. Why? Because .in cannot be sold by the registrar, which exactly is the good thing for you, because you can find those domains from here. यहाँ पे जैसा मैंने बताया .in में जाके आप SG से सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एलेक्सा से सॉर्ट करना है तो अगेन अच्छे डोमेन यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से spa.in एक बहुत अच्छा डोमेन मैं मान सकता हूँ किसी स्पा कंपनी के लिए। इस पे ट्रैफिक और बैकलिंक्स भी काफी सारे हैं। ओके, और अगर हम इसमें देखें तो एक ये डोमेन भी, टिकटॉक को भी, क्रिकेट स्कोर को भी मैं अच्छा डोमेन मान सकता हूँ। इस तरह के डोमेन कॉम में मिलना मुश्किल है। ओके, तो downloader.co.in अच्छा डोमेन है। इस तरह के जो डोमेन्स हैं वो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि हाँ, और ये जो सारे डोमेन्स हैं इनके ड्रॉप डेट लिखी है कि भाई ये किस दिन खत्म होंगे, उस दिन आप रजिस्टर करने की इनको कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इनको बैक ऑर्डर कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। यहाँ से आप फ्लिपिंग के लिए भी डोमेन ले सकते हैं, रिसेलिंग के लिए, मनी बनाने के लिए, बेचने के लिए, किस तरह से करने के लिए वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट, ट्रैफिक और उसके लिए भी कर सकते हैं।
उसके लिए अगर आपको करना हो तो जो बैकलिंक्स वाले मैट्रिक्स हैं उससे सॉर्ट कर लीजिएगा, जैसे ये। ओके, ये हुआ, एलेक्सा हुआ। एसीआर भी एक अच्छा मैट्रिक है, इससे पता चलता है कि साइट पहले कितनी अच्छी थी, कितनी बढ़िया थी, कितने अच्छे से चल रही थी। तो इसमें कुछ डोमेन्स आ रहे हैं, जैसे नो योर मोबाइल, मुझे एक बहुत अच्छा सा डोमेन दिख रहा है इसमें, जिसके एसीआर भी अच्छे हैं, जो साइट पहले से डेवलप भी दिख रही है और नाम भी अच्छा है। और इस तरह के आप डोमेन डॉट इन में ले सकते हैं। ओके, अगर आप में से इनमें से किसी भी डोमेन को आपको बैक ऑर्डर करना हो तो आप सीधे इस डोमेन पे क्लिक कर देंगे, इट विल टेक यू टू द बैक ऑर्डरिंग पोर्टल फॉर डॉटा एंड डोमेन्स यहाँ पे। और यहाँ पे जाके आप चाहे तो अपना डोमेन सबमिट करके आप कर सकते हैं। ओके, बैक ऑर्डरिंग लॉगिन करके अकाउंट बना के करने का रहता है। चलिए, मूविंग ऑन। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट ये डोमेन हमने ले लिए। अब इनके और भी अगर कोई मैट्रिक्स देखना हो तो किस तरह से हम अब इस डोमेन में भी कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा डोमेन अच्छा है, कौन सा डोमेन अच्छा नहीं है। ओके, कौन से मैट्रिक्स अच्छे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें एक ही बारे में पता चल जाए। तो हमारे ही एक ग्रुप मेंबर ने एक बहुत अच्छा टूल बना रखा है, चेकडक करके। आप में से अगर किसी ने यूज नहीं किया हो तो आप कर लेना। चेकडक क्या करता है कि आपको एक ही बार में डोमेन के लिंक्स बता देता है और एक ही बार में आपको सजेस्ट कर देता है कि ये डोमेन अच्छा है या नहीं। तो आपको काफी हद तक देखने में आ जाता है कि हाँ ये डोमेन लेने लायक है या नहीं है। इसको मैं हाइट फ्लोटिंग कर देता हूँ। एक अकाउंट है, ओके। सो यहाँ पे आप डोमेन को जाके आप डोमेन डालिएगा चेकडक में। मेरे ख्याल से आप खुद भी कर सकते हैं, फ्री अकाउंट है, आप बनाइएगा, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे और आप उस पर जाके देख सकते हैं कि डोमेन का लिंक स्कोर, स्पैम स्कोर एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि डोमेन रखने लायक, लेने लायक है या नहीं है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम अच्छे डोमेन्स अक्वायर कर सकते हैं। ये था एक्विजिशन वाला पार्ट। बेचने वाले पार्ट पे अगर हम जाएंगे तो बेचने वाले पार्ट के बारे में मैंने एक पोस्ट पहले से कर रखी है, मैं आपको उस पोस्ट का ढूंढ के लिंक दे देता हूँ, या ईश कुमार ने दे दिया। तो ये सारे लिंक्स दे दिए। ओके, तो ये डोमेन बेचने वाली बात हो गई। ओके, और डोमेन एक्वायर करना मैंने आपको बता ही चुका हूँ। So that was it from my side, because unfortunately due to the shortage of time I'm not at the liberty to hold a webinar of let's say 3 or 4 hours. तो ये एक पार्ट हुआ। मेरे ख्याल से सीरीज में एक आध वेबिनार डोमेन से रिलेटेड और रख लेंगे, इस बार किसी स्पेसिफिक चीज पे रखेंगे। आज मैं 1 घंटे में आपको इतना ही बता सका कि एक्सपायर्ड डोमेन्स को हम यूज कैसे करते हैं और कैसे यहाँ से डोमेन एक्वायर करते हैं। अभी मेरे ख्याल से आधे घंटे तो क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे। ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, अब आपको फिर से स्क्रीन के बजाय मेरा टकला सिर देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों की बदकिस्मती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। स्क्रीन पे जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बता दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, मगर उसके पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जो चीज सुभाष चौधरी ने भी बार बार बोली है, सुमित घोष ने भी बार बार बोली है, सहर्ष ने भी बोली, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोमेनिंग या इंटरनेट मार्केटिंग की कोई भी चीज गेट रिच क्विक स्कीम जैसी ट्रीट ना की जाए। हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि डोमेनिंग हुआ, ये हुआ तो आज डाले 100 रुपए, कल ले लो 50,000 रुपए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, क्योंकि कोई भी चीज अगर इतनी आसान होती तो आज दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, एवरेज आओ मोटा मोटा इतने ही होंगे, तो सब आसान चीज को अभी तक कब का सैचुरेट कर देते होते। तो पहली बात तो कोई चीज आसान होती नहीं है, और अगर होती है आसान तो ज्यादा दिन तक आसान नहीं बनी रहती। ओके, तो ये डिफरेंस समझना कि कोई भी चीज अगर आप तक पहुंचती है तो वो आसान नहीं होगी। तो डोमेनिंग हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी एस्पेक्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीक्रेट सॉस, या आपका करने का कुछ यूनिक वे। आपका कोई भी ऐसा तरीका हो, या जिस तरह से हम काम करते हैं उसमें कुछ आप ऐसा निकाल लें
कि जो कोई और उस तरह से ना कर पा रहा हो। जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर होता है तो उसकी सक्सेस के पीछे क्या राज होता है कि उसने ऐसा यूनिक प्रोडक्ट निकाला है जो दूसरे लोग नहीं बेच पा रहे हैं। कोई बहुत सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर होता है, उसकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं राज होता है कि उसने कुछ यूनिक चीज ऐसी निकाली है जिसको प्रमोट कर रहा है जो कि दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई भी सक्सेसफुल डोमेनर होता है तो कुछ ऐसे यूनिक किस्म के डोमेन्स उसने निकाले हैं जो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले एक जेनेरिक डोमेनर था। ओके, मुझे डोमेनिंग में कोई 6-7 साल हो चुके हैं। जेनेरिक डोमेनर के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा स्पेसिफाई किया और मैंने निश डोमेन्स पे काम करना शुरू किया और मोस्टली फिर मैंने CCTLDs पे आया और अभी मैं डॉट इन पे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को पता है और इसमें अभी भी बहुत सारे जेम्स मिलने की संभावना होती है। मैं आज भी अपने डोमेन्स जो है रेगुलर 3 और 4 फिगर्स में बेचता हूँ। 5 फिगर्स में भी कई डोमेन्स बिकते हैं। अगर आप मेरी फेसबुक वॉल पे जाके #random_update हैशटैग से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी काफी मेरी पास सेल्स। अभी रिसेंटली मैंने सेल्स को पब्लिसाइज करना थोड़ा कम कर दिया है। अर्निंग लैब में भी शायद मैंने कुछ दिन पहले एक आध सेल कोई सी रिवील की थी। तो आप देखेंगे कि डॉट इन और इनमें भी बहुत पोटेंशियल है। मैं इन पे भी काम कर रहा हूँ और आपको जरूरी नहीं है डॉट इन पे ही करें या जरूरी नहीं है कि आप उंगली ही मेरी पकड़ें। क्या होता है अगर मैं आपको उंगली दिखाता हूं, इफ आई शो यू द वे दैट इज मेंट to show you the path. Okay, what you people do or what sometimes people do that if I show a path by pointing my fingers to it, you guys start looking at the finger and not the path that I'm showing. Okay, so that is why I say that it is most important that when someone shows you a path, look at what he wants to share or what he wants to show, not at his finger। अच्छा तुम डॉट इन कर रहे हो हम भी यही करेंगे, या तुम इस तरह से कर रहे हो हम भी यही करेंगे। कहने का मेरे मतलब ये है that try to find your own niche, try to find your own secret sauce। Okay, so domaining is not a get rich quick scheme, do not treat it like one, but yes, if you work hard and research hard, it is much less competitive thing than other areas of digital marketing, and hence this better suit to people like me who are somehow lazy by the nature, and then they can work on it because it doesn't require your constant attention, it doesn't require you working your ass off 24/7. Okay, it can work off with relatively low capital, so this is great for something if you have got the skills and determination to research and to learn. That was it from my side, guys, and let's get to the question answers now. Okay, so मैं जो क्वेश्चंस मुझे पता होंगे मैं उनके बारे में बता दूंगा। ओके, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं पता होंगे मैं उनके बारे में साफ बोल दूंगा ये मुझे नहीं पता। एंड लेट मी क्लेरिफाई वन मोर थिंग दैट आई एम नॉट दुग्गल साहब, तो मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। डोमेनिंग की भी बहुत सारे ब्रांचेस ऐसी हैं जिसपे नहीं है मेरी पकड़, मैं आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन दैम, तो मैं सिंपली आपको बोल दूंगा कि आई एम सॉरी दिस फॉल्स आउट ऑफ माय एक्सपर्टीज एरिया। ओके, सो मैं नीचे से क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। देखिए स्पैम जिला पे मैंने कभी काम नहीं किया सूरज, सो आई कांट टेल अबाउट इट। व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डोमेन आफ्टर एक्सपायरेशन टिल अवेलेबल, हाउ टू कैलकुलेट वर्थ ऑफ एनी डोमेन लाइक अदर बिजनेस। देखिए सूरज, आपकी बात का अगर मैं जवाब दूं तो डोमेन की वर्थ निकालने के लिए कई ऑटोमेटेड टूल्स भी हैं। एक एसटीबॉट है, गोडैडी वैल्यूएशन है, मगर ऑटोमेटेड टूल्स जितने भी होते हैं वो आपको किसी काम के नहीं होते और वो आपको ठीक से चीजें भी नहीं बता पाते। तो वैल्यूएशन आपको निकालना है तो नेम बायो डॉट करके एक वेबसाइट है जहां पे पास सेल्स दिखती हैं, उन पे आप जो है बता सकते हैं। सार्थक, although I personally love your names but I'm not here to appraise the names, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नेम्स अप्रेज करने लग जाऊंगा तो पूरे 70 पार्टिसिपेंट्स ने अगर अपने 5-5 नाम भी बताया तो 350 नाम को मैं अप्रेज नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलिए मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ। that somebody asked Ayush that is this your full time profession, so Ayush, yes, this is my full time profession। to answer Suraj's question,
that what are the different stages of domain expiration. तो सूरज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया लिंक शेयर करता हूँ. ओके, तो ये एक बहुत बढ़िया इमेज है सूरज, एंड फॉर एवरीवन एल्स दिस विल हेल्प यू टू नो द डोमेन एक्सपायरेशन साइकिल कि कब कितने दिन में जाता है, कब कहाँ वो होता है. सूरज का अगला सवाल है, हाउ टू कैलकुलेट वर्थ लाइक एनी अदर बिजनेस, आर देयर एनी रिस्क फैक्टर्स इन दिस और परसेंटेज ऑफ रिस्क. सो यस सूरज, just like there is a risk in every business, the risk is everything that you do, the risk is everything in your life. It also has a risk. If you play smartly, you can reduce your risk. Okay, नहीं आया क्या? चलो ये आया लिंक. तो this is the link. Okay, now मैं अब ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो देखता हूँ. Vamsi, I hope I have told what you wanted to know in plain English also. जॉनी का सवाल है, why I'm not able to register some domain when it is showing available. जॉनी, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो टेक्निकल ग्लिच होते हैं. आप मुझे एक डोमेन बताइए जो अवेलेबल दिखा रहा हो पर रजिस्टर नहीं कर पा रहा हो, तो मैं यहाँ पे उस पर बात करूंगा. सूरज के सवालों के जवाब हम दे चुके हैं. सुमेश का सवाल है कि .me और .io डोमेन्स गुड होते हैं क्या रिसेलिंग के लिए? देखिए, अगर उनमें अच्छा डोमेन हो तो होते हैं, पर अगर आप दिस इज माई ग्रेट डोमेन .io ऐसा डोमेन लेंगे तो नहीं होगा. ठीक है, तो बिकती सारी चीजें हैं, बस कीवर्ड अच्छा होना चाहिए. गौरव कुमार का सवाल था, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन एड और रेड एंड ग्रीन डेट इन एक्सपायर्ड डोमेन? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गौरव कुमार. इफ यू आर स्टिल विद अस, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द रेड डेट इन एक्सपायर्ड डोमेन्स आर द काइंड ऑफ डेट्स दैट आर नॉट कंफर्म्ड येट, because the drop date might change by a day or two. However, the green dates are the ones that are already been confirmed by the expireddomains.net portal, and the domain will surely drop on that particular date. So red is unconfirmed, green is confirmed. What is the drop cache time of .in domains? Ayappa का सवाल था. Ayappa, the drop time for .in domains is 1:30 AM in the night. ओके, एक से ज्यादा लोग सेम डोमेन ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा? रोहित कुमार का सवाल है. रोहित, इफ मोर देन वन पीपल ऑर्डर अ डोमेन, इट गोज इनटू एन ऑक्शन बिटवीन ऑल दोस पीपल हु हैड ऑर्डर्ड इट, एंड देन दे कैन बिड ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन, एंड whoever will be the winner, they will actually get the domain. Is back ordering expensive? Ayush, it's not expensive if you don't get in the bidding war. The back ordering portals started from $25 or $60 or $70. However, if a lot of people in there and the auction goes wild west, then it can go to any length. Then you have the option to not participate in the bidding. But back ordering by itself is not expensive. It's the domain that is expensive. सूरज, रेड और ग्रीन के बारे में मैं बता चुका हूं. How will we list them if registrars don't sell .in auctions? Rohit Kumar, this is a very good question. Registrars do not sell .in auctions, so you can't sell them on registrar. You can sell them on platforms like Sedo, Dan.com, Flipper.com, because they are the ones who are not registrars, so you can sell there. You are not into .com. Which TLD you are into now? I'm into now .in. Okay. और जो क्वेश्चंस मुझे समझ आ रहे हैं मैं ले लूंगा, जो नहीं आ रहे वो नहीं लूंगा. एंड डेट यानी सूरज, एंड डेट यानी द डेट व्हेन दिस पर्टिकुलर डोमेन विल ड्रॉप. ओके. डीजे आयुष, इफ यू डोंट नो एलेक्सा, डीजे आयुष का सवाल है, आई डोंट नो एलेक्सा, प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन. So डीजे आयुष, एलेक्सा is a very basic thing that should be known for every internet marketer. I suggest you to do a little research of yourself. So I think they were all the questions. Okay, अब मैं recent वाले questions लेता हूँ. आयुष का सवाल है, how to pitch a domain for selling to get max price. Ayush, once again the link I have shared of the Earning Labs post, it mentions the figures also that you need to do in order to make a sure shot sale. Back ordering expensive का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ. I'm a beginner, should I cap my initial investment to a certain amount? Yes, Ayush, it is suggested to put only money what you can afford to lose. Okay. सहर्ष मित्तल भाई ने बहुत अच्छा लिंक दिया है, मूनसी वाला. ओके, तो यहाँ से
आपको बहुत सारे अच्छे डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन्स मिल सकते हैं कि एक ही जगह लिस्ट करके आपको बता देते हैं. You guys can visit this definitely. श्री गोपाल का सवाल है, Flippa Sido can we list the domain to sell free or are they charged? श्री गोपाल भट्टर जी, ये प्लेटफॉर्म्स तभी चार्ज करते हैं जब आप क्या डोमेन बिक जाए तो एक कमीशन चार्ज करते हैं, लिस्ट करने पर कोई चार्ज नहीं करते. रोहित कुमार का सवाल है कि डू डोमेन्स विदाउट हिस्ट्री जीरो बैकलिंक्स आर गुड लाइक chat.com will it sell? देखिए रोहित, मैं ये बात शुरू से एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि डोमेन्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक होते हैं गुड डोमेन्स जो रिसेलिंग के पर्पज से गुड है, दूसरे होते हैं गुड डोमेन जो डेवलपमेंट या ब्लॉगिंग या बैकलिंक्स या ट्रैफिक के पर्पज से गुड है. तो पहली कैटेगरी में जैसे आपका chat.com आ गया, business.com आ गया, vacationrentals.com आ गया, holidays.com आ गया, कोई भी एक कीवर्ड डोमेन ले लीजिए, उन पे भले ही बैकलिंक्स ना हो, वो सिर्फ अपने ब्रांडेबिलिटी के दम पे बिकेगा. और ब्लॉगर्स, पीबीएस और इन लोगों को अगर बैकलिंक्स वाले डोमेन चाहिए तो वो अलग तरह से इवैल्यूएट होगा. तो ये दोनों चीजें अलग अलग है. chat.com आपका जो सवाल है वो पहली कैटेगरी में आता है. Can we list a single domain? सोमेश का सवाल है, can we list a single domain for selling on Memejet, Diner or Sido Flippa at same time? Yes, सोमेश. Once again, I hate to sound like a broken record, but मैंने अपनी अर्निंग लैब्स की पोस्ट में exactly यही चीज बताई है कि एक ही डोमेन को हम मल्टीपल एवेन्यूज पर कैसे बेच सकते हैं. तो ऊपर ईश मदान ने शायद लिंक शेयर किया है, उसको प्लीज 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 विजिट कीजिए. नवीन मुनिकुंडला का सवाल है, when does the domain drop from marketplace and how can we check if they all are dropping? So Naveen, the domain drops on the date, on its end date, especially when the end date is green in expireddomains.net, and you can track with the help of expireddomains.net itself. How many months can we keep the domain before selling? Can is the wrong choice of word here. Pixel to Excel. The right word should be should. Okay. So जब आप एक बार डोमेन लेते हैं, जब आप एक बार डोमेन को रजिस्टर करते हैं तो आपके पास 12 महीनों के लिए होता है. The domain gets registered for a period of 12 months or 1 year. So you can try to sell the particular domain in that period. Else you'll have to renew, and if you are still bullish on that domain that yes, it will definitely fetch me money, you might want to renew it, or you can just decide that no, it doesn't work anymore to keep this particular domain, so you can drop it very well. Johnny, unfortunately I can't help you with individual case. आपका कौन सा डोमेन था, वो अवेलेबल क्यों दिखा रहा था और वो क्यों फिर रजिस्टर नहीं हुआ, ये बिना डोमेन जाने मैं नहीं बता सकता. ओके, सो आई थिंक हम यहाँ तक आ चुके हैं, सारे सवाल भी खत्म हो चुके हैं. Guys, any more questions or anything, just let me know in the chat. I think we are all done here. If any additional questions, I welcome them, and then I'll close this webinar. Okay. Pixel to Excel का सवाल है, how many years will you keep the domain on average? So Pixel Excel, I tried to sell my domains within the first year of registration. So 80% of my sale come within the first year. फिर भी नहीं होता है तो मैं उसको एक बार और रिन्यू करता हूँ. एक बार के बाद फिर 2 बार रिन्यू मैं बहुत कम करता हूँ. So I try to sell most of the domains in first year itself. On an average, I keep my domain for no more than 2 or let's say 2.5 years. That is the max I keep my domains for. Which is the cheapest reliable registrar to buy domains in bulk? Rohit, that depends on extensions. You know, because some registrars are cheapest for some extensions, while other registrars are cheapest for other extensions. So if you ask for .com, the answer would be different. If you ask for .in, the answer would be different. How many domains do you have in your portfolio that you turned it into a full-time profession? So Ayush, I currently have close to 13 to 14,000 domains in my portfolio. However, I am a full-time professional even way before that. Okay. Naveen Kuntla, .in क्या मतलब? .in question आपने लगा दिया. I need to know your full question. Selling on marketplace versus finding direct clients. Okay, Somesh, this is a very lengthy thing to answer.
ओके, सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस अच्छा है या फाइंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स? देखिए इसमें कोई लड़ाई नहीं है, सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस वर्सेस फाइंडिंग डायरेक्ट क्लाइंट्स वाया गूगल सर्च और एनी अदर मेथड। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज कर सकते हो और दूसरी नहीं कर सकते हो। मार्केट प्लेस पे भी सेल करो, डायरेक्ट क्लाइंट गूगल से ढूंढ के भी सेल करो ना, जहां से बिक जाए, दोनों का आपस में कोई टकराव थोड़ी है। ओके, दोनों दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट अपोज टू ईच अदर, तो दोनों करो। Some more light on factors while investing in .and domain for reselling purpose. Utsav, very good question. So for reselling purpose, what you need to know that the domain should be, highly searchable term in Google, and it should have a commercial use, not just for .and domain. पर मैं कोई भी डोमेन लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार इस डोमेन पे किस तरह की चीज बन सकती है, किस तरह का पोर्टल बन सकता है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ एक डोमेन्स ड्रॉप हुए थे, जैसे कि silver.co.in, platinum.co.in, shirt.in, shirts.in, ओके, denim.in, इस तरह के पोर्टल्स, इस तरह के डोमेन्स पिछले कुछ दिनों में ड्रॉप हुए थे। तो अब जैसे silver.co.in पे क्या पोर्टल बन सकता है बताओ? एक सिल्वर बेचने का ज्वेलरी का पोर्टल बन सकता है, आपको shirt.in पे, shirts.in पे क्लोथिंग पोर्टल बन सकता है। तो अगर डोमेन सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि इस पे क्या पोर्टल बन सकता है, तो वो डोमेन काम का है और कमर्शियलाइजेबल है। If someone is ready to buy a domain for $1,000, how much will you negotiate? Pixel, that completely depends on the domain. Okay, some domains I will be happy to let go for 10,000 for $1,000. Some domain I won't even let go for $10,000. So putting a generic price on a domain is not possible. सहर्ष मित्तल का सवाल है कि हाउ एंड व्हेन यू डिसाइडेड यू विल परस्यू डोमेनिंग ओनली। सहर्ष, भाई सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि कब और कैसे डिसाइड किया, तो ये मैंने तब डिसाइड किया जब मैंने जाना है कि मैं, देखो आदमी तो हूँ आलसी, ठीक है, मुझसे ना ये काम नहीं होता कि 50 लोगों की टीम, 100 लोगों की टीम खड़ी करी, कंपनी बनाई, ठीक है, और फिर दिन रात भाग रहे हैं, लगे हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं, वीसी फंडिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि यार मैं थोड़ा सा लेड बैक और थोड़ा सा चिल्ड वाला आदमी हूँ, मुझे ये बहुत हड़बड़ी वाली लाइफ, हड़बड़ी वाले धंधे मुझे पसंद नहीं है, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं डोमेनिंग में जाऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जितना शक्कर डालोगे बस उतना ही मीठा होगा। मुझे अगर दिन में 2 घंटे काम करना है तो मैं 2 घंटे भी कर सकता हूँ, मुझे 20 घंटे काम करना है तो मैं 20 घंटे भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं डोमेनिंग जो है, मेरी जो चिल्ड और लेड बैक पर्सनैलिटी उसके साथ एकदम फिट बैठ गया, तो मैंने ये शुरू किया। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने शुरू किया होगा 2014 में, आई बिलीव। फॉर बाइंग इन बल्क विच रजिस्ट्रार फॉर .in, ये नवनीत का सवाल है। नवनीत, फॉर दैट PM मी एंड आई विल फेच यू द कस्टम रेट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी रजिस्ट्रार विद द क्वांटिटी दैट यू वांट टू बाय, कि आपको .in में कितने डोमेन्स बाय करना है, एक बार मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। What is your website name that you sell the domains? Vamsi, I do not have a website from where I do sell the domains. रोहित कुमार का सवाल है, have you tried to sell domains using FB groups or something else, not by auctions or marketplaces? So Rohit Kumar, I have not tried using FB groups because the response is very dead there. However, I have sold domains via email and outbound process. Will you choose a brand name or name with good backlinks authority? Pixel to Excel का सवाल है। Pixel, again this question is something that varies from case to case. Let's say अगर मुझे नया ब्रांड खड़ा करना हो जिस पे ट्रैफिक की इतनी जरूरत नहीं है तो मैं ब्रांड नेम चुनूंगा, और अगर मुझे ऐसी कोई साइट खड़ी करना हो जिस पे डे 1 से ट्रैफिक मिलना इंपॉर्टेंट है कि नहीं यार डे 1 से मुझे चाहिए इस पे ट्रैफिक, तो मैं बैकलिंक्स वाला लूंगा। Which is the highest price domain you have sold? So my highest price domain that I have sold was for $30,000. The sale is under NDA. The highest public domain I sold that I can reveal the sale is for $10,000. Okay. और मेरे सारे डोमेन्स का एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो $5 और $10 रहता है। हैंड रजिस्टर से ज्यादा प्राइस पे मैंने आज तक कभी कोई डोमेन एक्वायर नहीं किया। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक डोमेन हैंड रजिस्ट्रेशन से ऊपर की प्राइस पे एक्वायर किया है, वो है pankaj.org, क्योंकि मेरा खुद का डोमेन था तो मैंने उसको
शायद 100 या $125 पे एक्वायर किया है बेचने के लिए। सारे डोमेन्स मेरे सस्ते में एक्वायर रहते हैं, तो इसलिए मेरी सेल भी आपको $1 million सेल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए महीने के डोमेन्स नहीं बेच पाता हूँ, आई कैन नॉट सेल देम। सो मेरे जितने हैं वो मेनली $5,000-10,000 की सेल रहेगी, क्योंकि अधिकतर मेरे हैंड रजिस्ट्रेशन होते हैं। ओके, सहर्ष का सवाल है, नेवर फेल्ट टू ट्राई अदर निश। यार सहर्ष चल रहा है अच्छा, मजा आ रहा है, ब्रेड एंड बटर चल रही है, और इतना मतलब है कि अब लाइफ में कभी भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, घर है, गाड़ी है, अच्छी जिंदगी है, तो अब और दूसरे निश में ट्राई करके क्यों अपना चैन हराम करना। तो चल रहा है मेरे जैसे इंसान के लिए बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया चलेगा। तो आई हैव एयर फ्रायर उत्सव, एक पर्टिकुलर डोमेन्स का, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे जवाब एक एक डोमेन का नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे एक एक इंसान अगर अपना अपना डोमेन बताएगा तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाउ मच मिनिमम मनी शुड बी इन आवर बकेट टू स्टार्ट डोमेनिंग प्रोसेस। ये सूरज का सवाल है। सूरज, अगेन इसके जवाब में हिंदी की वही कहावत आ जाती है कि जितना शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। आपको 10,000 रुपए डोमेनिंग में डालने, तो 10,000 जितना गेम कर सकोगे, 10 लाख डालोगे तो 10 लाख जितना कर सकोगे। तो सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग होती है। ओके, आपकी कैपेसिटी जितनी मनी खोने की है उतना आप लगाओ। सहर्ष मित्तल ने बोला कि कंपेयर रेट्स, हाँ टीएलडी लिस्ट से कर सकते हैं सहर्ष। एक और रिसोर्स है domcomp.com, ये शायद मैंने अर्निंग लैब्स में भी शेयर किया था, अभी भी कर देता हूँ। domcomp.com फॉर सीइंग टीएलडी प्राइसेस अक्रॉस registrar। इन एडिशन टू टीएलडी लिस्ट जो सहर्ष ने दी, ये रिसोर्स भी आप यूज कर सकते हैं। वामसी का सवाल है, हाउ यू गोना सेल डोमेन्स विदाउट वेबसाइट लाइक गोडेडी। वामसी, for the umpteenth time I have written a post on Earning Labs group that how to sell domain names on various websites. Okay, ईश मदान या आप में से जो भी कोई सुन रहे हो भाई, एक बार फिर से लिंक डाल दो प्लीज, पोस्ट द लिंक once again so people that who might have missed it can see it, how to sell domains on various platforms. Okay, now जॉनी कालरा का सवाल है, कितने डोमेन्स है मेरे पास। जॉनी, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, मेरे पास कोई 13 से 14,000 डोमेन्स है अभी। अयप्पा का सवाल है, एक्सक्लूसिव वेबिनार रिगार्डिंग एक्सपायर्ड डोमेन्स.net। हाँ अयप्पा, दैट इज अ वेरी fascinating thing, and I myself would be very interested to do that. अयप्पा ने बोला है कि एक वेबिनार सिर्फ इसके लिए कर सकते हो जहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन्स.net के बारे में ही डिटेल से बताएं। तो मेरी भी बहुत इच्छा है करने की, कर भी सकता हूँ, मगर उसके लिए अयप्पा, फॉर दैट वी वुड नीड द काइंड ऑफ पीपल who are actually in digital marketing from quite some time. Okay, I mean, if I were to take a detailed webinar on expireddomains.net, I would need people who have the existing information. What is Alexa? What is Wayback? Okay, what is Google searches? What is CPC? मुझे ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा समय हो चुका हो। ओके, तो आई मीन इन दैट if I start explaining what is Alexa, what is Web Archive, or what is CPC, what is Google searches, what is backlink, अगर मुझे expireddomains.net के वेबिनार में ये समझाना पड़ा कि बैकलिंक क्या है, तो फिर हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। So if there is enough interest among the people who are into digital industry and who have the basic knowledge, I would be happy to have such a session. दीपक का सवाल है, 3 वर्ड डोमेन का वर्थ क्या। तो दीपक, 3 वर्ड डोमेन कौन से एक्सटेंशन में ये बताओ, क्योंकि इनका वर्थ अलग होगा, कोइन का अलग होगा, कॉम का अलग होगा, नेट का अलग होगा, ओआरजी का अलग होगा। समीर काकड़े का सवाल है कि हाउ डू मैनेज डोमेन्स लाइक रिन्यूअल्स। तो रिन्यूअल्स का हम ऐसे मैनेज करते हैं, जैसा मैंने बोला समीर की, मोस्ट ऑफ द डोमेन्स मैं कोशिश करता हूँ पहले 1 साल में बेच दूं। नहीं बिकता है तो मैं उनमें से कई को ड्रॉप कर देता हूँ, और जो बचे रहते हैं सिर्फ उन्हीं को रिन्यू करता हूँ। रिन्यूअल करना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सेल्स होती है उसके मुकाबले रिन्यूअल का परसेंटेज 10% से ज्यादा नहीं है रेवेन्यू के अगेंस्ट मेरा। ठीक है,
deepak.com में 3 लेटर डोमेन अगर हम बात करें और ये माने कि सिर्फ लेटर्स हैं, नंबर्स नहीं है, तो 10 से 20,000 डॉलर फॉर रैंडम डोमेन, और अगर अच्छा डोमेन हुआ तो फिर 30, 40, 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर तक उसकी वैल्यूएशन हो सकती है। वर्णित और सूरज और संतोष, इन लोगों का कहना है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स पे एक वेबिनार किया जाए। तो एक काम करो भाई, फिर अर्निंग लैब्स ग्रुप में एक ऑफिशियली एक पोस्ट कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, जो जैसे करना हो कर दो। तो देखते हैं अगर इनफ लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो एक हम वेबिनार इस पे भी कर लेंगे, बट मेक श्योर कि उसमें फिर लोग ऐसे हों कि जो एक्चुअल मतलब सवाल ऐसे पूछें कि जो कॉमन ना हो, मतलब समझ रहे हो ना, अगेन ऐसे ना मुझे बताना पड़े कि बैकलिंक्स की डेफिनेशन मुझे वहां नहीं देनी पड़े, ओके, या सीपीसी ना बताना पड़े कि सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, और जब कोई इंसान आपके उस पर क्लिक करता है तो आपको कितना पैसा लगता है, इसको सीपीसी बोलते हैं, ये उसमें ना बताना पड़े। तो इस तरह से एक पोस्ट बना दो अर्निंग लैब्स ग्रुप में, और भी लोगों का अगर इंटरेस्ट आएगा तो कर लेंगे एक वेबिनार, ओके। Kshitij Matta, what are caught domains on expireddomains.net? So caught domains are the ones that have been dropped and already caught by someone or some companies. Okay. So Gaurav, Rohit, Sri Gopal, Varnit, Santosh, whoever of you want to have such a thing, please make just a request in the Learning Labs group or anything, and I would be happy to look into it. So that was it, guys. Thanks a lot for giving your time, because मैं तो खैर ठीक है, मेरा तो काम ही है आप लोगों को तक ज्ञान पहुंचाना, पर आप लोग इतने अच्छे से सुनते हैं, इतने अच्छे से आते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। आई एम वेरी मच हम्बल्ड, एंड अर्निंग लैब्स और सहर्ष को भी बहुत सारा मेरा साधुवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी चीजों को आयोजित किया और इतने अच्छे से चीजों को बनाने की कोशिश की कि हमारी इस कम्युनिटी में जो भी चीजें सही हो रही हैं, अच्छा ज्ञान अगर हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो उस पे उन्होंने ये किया। सो चित्रांश, अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम इज ओवर ब्रो। सो मैं अब इजाजत चाहूंगा आप सब लोगों से, आपके जो भी सवाल हो अब आप अर्निंग लैब्स ग्रुप्स में पूछिएगा, ठीक है। और वर्णित, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिशिएशन, आई एम ग्लैड, एंड चीयर्स टू दैट। और उम्मीद करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरे सिर पे ज्यादा बाल आप लोगों को देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। जो भी आपके फॉलोअप क्वेश्चंस हो आप अर्निंग लैब्स ग्रुप में डाल सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू कम्युनिकेट विथ यू देयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनिए। और दुनिया में सारा ज्ञान फ्री में उपलब्ध है, बस सही लोगों तक, सही रिसोर्सेज तक आपको पहुंचने की जरूरत है। बी सेफ, ना किसी का काटिए ना किसी से कटिए। बस इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, हैव अ नाइस डे।